Hello students, today we will start the next poem. Name of the poem is A Roadside Stand and it is written by Robert Frost. So firstly about the poet, Robert Frost was born in 1874 and was died in 1963. Is a highly acclaimed American poet. So he was a highly acclaimed or famous American poet of the 20th century. Robert Frost wrote about characters, people and landscapes. Characters के बारे में उसने लिखा है, people and also the landscapes related to the भूदृश्य, that is different type of beautiful sceneries. His poems are concerned with human tragedies and fears, his reaction to complexities of life, and his ultimate acceptance of his burdens. So, what he included in his poems? His poems are concerned with human tragedies. ह्यूमन लाइफ के अंदर किस प्रकार की ट्रेजिडीज आती हैं, दुर्घटनाएं आती हैं, एंड फियर्स, हिज रिएक्शन टू द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ, उसका ह्यूमन बींग का जो रिएक्शन है किसके प्रति, दैट इज़ कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ, डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटीज इन लाइफ, लाइफ की जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स हैं किस प्रकार से उसको स्ट्रगल करना पड़ता है, उनसे रिलेटेड हिज रिएक्शन एंड हिज अल्टीमेट एक्सेप्टेंस ऑफ हिज बर्डन्स, एंड एट लास्ट हाउ ह्यूमन बींग्स एक्सेप्ट देयर बर्डन्स, किस प्रकार से वो अपने बर्डन्स को एक्सेप्ट कर लेता है. ही हैड टोल्ड ऑल दीज थिंग्स अबाउट इन हिज पोएम्स. स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन a snowy evening, bridges, mending walls are a few of his well-known poems. Also a poem we might have read in 9th class, Road Not Taken. So these are some famous poems of Robert Frost. And in the poem A Roadside Stand, Frost presents the lives of poor deprived people with pitiless clarity and with the deepest sympathy and humanity. The particular poem that is in your syllabus right now, we are reading this poem. So a roadside stand, in roadside stand, Frost represents the lives of poor deprived people. जो गरीब लोग हैं, जो deprived हैं, they are exploited, they are not having the प्रॉपर फैसिलिटीज़, जो कि वंचित लोग हैं अच्छी सुख सुविधाओं से, विद पीटीलेस क्लैरिटी, विद अ पीटीलेस, दयनीय तरीके से स्पष्ट रूप से उसने बताया उनके बारे में, विद द डीपेस्ट सिंपैथी एंड ऑल्सो हैविंग ए सिंपैथी टुवर्ड्स दैम, एंड ऑल्सो विद ह्यूमैनिटी, और एक मानवता के तहत एज ए ह्यूमन बींग व्हाट वी शुड डू टू हेल्प द पुअर पीपल. Actually, Robert Frost was also a farmer, and from a farmer he also became a poet. So he had much written his writings about the about the farmers. So in this poem also he is telling about the plight of farmers. What is the plight of farmers, or what is the bad condition of farmers, in which situation the farmers are living right now. Farmers किस तरीके से रहते हैं. And the main theme of the roadside stand is difference between the rich and poor. What is the difference between the rich, they are urban or you can say city dwellers, and poor who are rural and also belong to the villages, जो विलेज से बिलोंग करते हैं, उनके बीच में डिफरेंस क्या है, एंड हाउ दिस डिफरेंस कैन बी एवरेज्ड. वो डिफरेंस है वो कैसे एवरेज किया जाए, उसको कैसे मिटाया जाए. बिकॉज द रिच हु आर सेल्फिश, द नेचर ऑफ rich persons have been given that how selfish they are and how they are self-centered only, they are greedy, so they are self-centered also. So how they are not helping the farmers who are very poor, they are not having proper facilities, not having proper facilities. So these things have been discussed in this poem, that how the farmers are having problems and how they always demands for money, and the rich persons who are always having so much comfort, they always ignore the poor. Now come to the title, roadside stand. So what is roadside stand? Usually the farmers whose field is
इन द साइड ऑफ द रोड, एट द साइड ऑफ द रोड, इन फ्रंट ऑफ द रोड। वो फार्मर जिनकी घर हैं जो रोड साइड, रोड के साइड के ऊपर होते हैं, उनका फील्ड है पहले और उसके बाद घर है। सो दे ऑल्सो ट्राइड टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। वो अपने प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उनको सेल करने की कोशिश करते हैं, सो दैट दे कुड गेट सम अर्निंग्स, सम मनी। एंड दोज हु कम फ्रॉम द सिटी in their cars, they never stops towards them, and if ever stops they also take bargaining for the prices of their items, products, and because they can't sell so much of their products, they are always having in miserable conditions. So the farmers who are selling such type of products at the roadside stand, जो हॉकर्स हैं, जिन्होंने एक मान लीजिए अपने घर के सामने एक टीन सेट लगा दिया और वहाँ पर वो कुछ अपने फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनको सेल कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड द रोड साइड स्टैंडर्स और रोड साइड स्टैंड। नाउ कम टू द पोएम, एंड बिफोर यू रीड इट हैज़ बीन गिवन, हैव यू एवर स्टॉप्ड एट द रोड साइड स्टैंड? क्या अभी कभी आप रोड साइड स्टैंड के ऊपर रुके हैं? व्हाट हैव यू ऑब्जर्व देयर? आपने वहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया है? सपोज यू आर जस्ट गोइंग फ्रॉम रोड इन योर कार एंड देयर आर फील्ड्स, खेत है यहाँ पर, और खेत के सामने एक घर है, एंड देयर समवन, अ फार्मर इज सेलिंग हिज फ्रूट्स और वेजिटेबल्स देयर। सो हैव यू सीन सच रोड राइड स्टैंड? नॉर्मली एवरीवन हैज सीन। सो हैव यू एवर स्टॉप्ड देयर? क्या आप वहाँ पर रुके हैं? हैव यू ऑब्जर्व देयर समथिंग? क्या आप वहाँ कभी रुके और क्या आपने ऑब्जर्व किया? व्हाट द पोइट वांट टू से हियर, दैट हैव यू ऑब्जर्व द प्लाइट कंडीशन और द प्लाइट ऑफ द फार्मर, द बैड कंडीशन ऑफ फार्मर? दैट फार्मर इज इन व्हाट कंडीशन द फार्मर इज? फार्मर की कंडीशन क्या है? ही इज़ वेरी हैविंग सो मैनी फैसिलिटीज़, और ही इज़ वेरी हेल्दी, strong in good clothes, having a refined way. So you will have seen that he is always like a farmer. He is not in good condition, not even healthy, and his eyes always see, you can see a gleam in his eyes, that is of hunger or earning the money. कि वो कुछ न कुछ कहना चाहता है, कुछ वो चाहता है कि that you should purchase his products from him. So the poet is saying, now we are going to start the poem. The little old house was out with a little new set in front at the edge of the road where the traffic sped. That on the edge of the road there was a little old house. एक पुराना एक छोटा सा घर है किसी फार्मर का, उसके बैक में उसकी फील्ड्स हैं, खेत हैं, एंड दैट वाज एक्सटेंडेड, दैट वाज आउट विद अ न्यू सेट। वो एक न्यू सेट के साथ, एक न्यू टीन सेट है, दैट वाज एक्सटेंडेड, वो आगे बढ़ाया गया। इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड, बिल्कुल रोड के किनारे के ऊपर, रोड के बिल्कुल सामने, वेयर द ट्रैफिक स्पेड, जहाँ से ट्रैफिक है वो स्पेड करता है, जहाँ से ट्रैफिक रनिंग करता है। सो इन द वेरी फर्स्ट लाइन, द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट। हाउस अपने आप नहीं बाहर सकता, दैट वॉज एक्सटेंडेड बाई समवन, सो हियर पर्सोनिफिकेशन हैज़ बीन यूज्ड इन द वेरी फर्स्ट लाइन। सो a roadside stand that too pathetically played. Once again, a roadside stand, actually not the roadside stand, but the farmer is actually pathetically pleading. Pathetically means in a very, you can say, miserable condition. Plead means request. बड़ी ही दयनीय तरीके से जो रोड साइड स्टैंड वाला जो फार्मर है वो रिक्वेस्ट कर रहा है, इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर ए डॉल ऑफ ब्रेड, एंड द पोइट इज सेइंग इट वुड नॉट बी फेयर, ये ठीक नहीं होगा, दैट ही इज सेइंग फॉर ए डॉल ऑफ ब्रेड, डॉल मीन्स डोनेशन ऑफ अ ब्रेड, कि वो एक रोटी मांग रहा है, दान रूपी रोटी मांग रहा है। एक्चुअली इट इज़ नॉट फेयर, ये ठीक नहीं है कि हम ये कहें कि वो रोटी मांग रहा है बिकॉज ही कैन अर्न एटलीस्ट ब्रेड फ्रॉम हिज फार्म्स और फील्ड्स, अपने खेत से ब्रेड तो वो कमा सकता है, रोटी कमा सकता है, बट फॉर सम ऑफ द मनी, लेकिन कुछ पैसा मांग रहा है, ही इज़ आस्किंग फॉर सम ऑफ द मनी, द कैश, ही वांट्स टू फील द कैश इन हिज हैंड, अपने हाथ के अंदर क्या है, कैश फील करना चाहता है। whose flow sports the flower of cities from sinking and withering faint, जिसका जो फ्लो है, कैश का जो फ्लो है, that sports the flower of cities. Flower of cities is actually
the symbol for the that is rich people, or you can say city folk. That is for city folk, जो सिटी के लोग हैं उनके लिए यूज़ किया गया है. सो हियर यू कैन से because flower of cities has been used to compare the city folk who are having facilities and all comfort of the life. So it is metaphor here used. So the next is saying that whose flows sports the cash. उस कैश को वो फील करना चाहते हैं, अपने हाथ में लेना चाहते हैं, उसके लिए वो क्या है पैथेटिकली प्लेड कर रहे हैं. देन इस तरीके से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे पास कोई आए, हमारा सामान परचेज करे. उसके लिए whose flow sports the flower of cities from sinking and withering faint, कि वो फ्लावर ऑफ सिटीज़ को या जो सिटी के जो लोग हैं उनको सिंकिंग होने, सिंकिंग का मतलब दैट गोज डाउन, एंड विदरिंग फेंट उनको मुरझाने से, विदर होना मतलब दैट इज़ नॉट हैविंग गुड हेल्थ एंड गुड फैसिलिटीज़. तो ये एक्चुअली जो कैस है जो कि सपोर्ट करता है फ्लावर ऑफ सिटीज़ को अच्छी फैसिलिटीज़ के लिए, अच्छे कंफर्ट्स के लिए, इंस्टेड ऑफ गोइंग सिंकिंग, गोइंग डाउन एंड विदरिंग फेंट. फेंट मीन्स कमज़ोर हो जाना. सो इफ़ दे दिस मनी वुड नॉट सपोर्ट द फ्लावर ऑफ सिटीज़, अगर इस सिटी के लोगों को अगर ये मनी सपोर्ट ना करे तो वो भी क्या करे, वो भी इन फार्मर्स की तरह से क्या हो जाएंगे, सिंक हो जाएंगे. दे विल ऑल्सो विदर एंड देयर विल ऑल्सो बी नो साइन ऑफ एनी strong health on their faces as well, like the farmers. Actually it has been compared with the farmers health and condition. farmers की health है उन condition के साथ उसको compare किया गया है कि flower of cities हैं, they got the spot of the money. if they can't get this spot they will also be like farmers. So the poet is saying that roadside stand, actually not the roadside stand but the farmer. So here personification that टू पैथेटिकली प्लेड, जो कि बड़े ही मिजरेबल तरीके से प्लेड कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है. इट वुड नॉट बी फेयर टू से, ये कहना ठीक नहीं होगा कि दैट फॉर ए डॉल ऑफ ए ब्रेड, कि वो भीख के अंदर दान की रोटी मांग रहा है, बट फॉर सम मनी, लेकिन वो पैसा मांग रहा है. द कैश, वो पैसा मांग रहा है. हुज फ्लो स्पॉट द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट, जिसका जो स्पॉट है, जिसका जो फ्लो है, वो सहारा देता है सिटी के लोगों को सिंकिंग करने से, कहीं वो डूब ना जाएं, कहीं वो कमज़ोर ना पड़ जाएं. इसकी बजाय उनको वो क्या है फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है, अच्छे कंफर्ट्स दिलाता है, उनको एक अच्छी ज़िंदगी दिलाता है. सो उस मनी को क्या है फार्मर्स रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो मेरे पास आ जाए. द पॉलिस्ड ट्रैफिक पास्ट विद द माइंड हेड. हालांकि जो फार्मर है ही इज़ रिक्वेस्टिंग, ही इज़ डिमांडिंग, ऐसा पोइट का मानना है कि जब उसने अपने रोड साइड स्टैंड के ऊपर जो वेजिटेबल या फ्रूट सेल करने के लिए जब खड़ा है, तो ही इज़ रिक्वेस्टिंग टू द ऑल दोज पीपल हु आर रनिंग फ्रॉम देयर इन देयर कार्स दैट दे वुड स्टॉप देयर एंड दे वुड परचेज सम आइटम्स फ्रॉम देम. बट वट इज़ द रियलिटी, द पॉलिस्ड ट्रैफिक, कि जो ट्रैफिक है जो पॉलिस्ड है, ट्रैफिक एक्चुअली इज नॉट अ पॉलिस्ड. पॉलिस्ड आर द city people. City people are polished. Polished word है that means refined, sophisticated. ट्रैफिक कार को बोला गया है, लेकिन ट्रैफिक को नहीं बोला गया है यहाँ पर, कार के अंदर रहने वाले लोगों के लिए कहा गया है. So if such type of situation is that if this adjective is used for the noun, that is not for this but in this for another. कि अगर किसी नाउन से पहले कोई दूसरा एडजेक्टिव आता है, वो इसके लिए यूज़ नहीं होता है, किसी दूसरे के लिए यूज़ किया गया है. दैट इज़ कॉल्ड अ ट्रांसफर्ड एपिथेट. इसको हम बोलते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट. सो हियर ट्रांसफर्ड एपिथेट फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड. सो द पोएट इज सेइंग पॉलिश ट्रैफिक और द रिच पीपल पास्ट विद द माइंड हेड, बिना कोई माइंड किए हुए वो आगे बढ़ जाते हैं. दे इवन डोंट सी टुवर्ड्स द फार्मर, कि वो फार्मर्स की तरफ देखते भी नहीं है कि हाउ दे आर इन बैड कंडीशन, कितने मिजरेबल कंडीशन के अंदर है, वो कैसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनका वेजिटेबल है, उनका जो प्रोडक्ट है वो सेल हो जाए. और इफ़ एवर अ साइड ए मोमेंट, अगर वो कभी एक साइड के अंदर थोड़ी देर के लिए रुकते भी हैं, देन आउट ऑफ शॉर्ट्स, तो वो आउट ऑफ शॉर्ट्स के कारण, आउट ऑफ शॉर्ट्स मीन्स टू बिकम अपसेट और इरिटेट, कि वो दुखी हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, इसलिए वहाँ पर रुकते हैं. और वो किस लिए दुखी होते हैं, किस लिए इरिटेट होते हैं, एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विद द आर्टलेस पेंट, ये कहते हुए कि यहाँ पर जो
पेंट दैट इज़ लैंडस्केप है, जो भूदृश्य है, जो सीनरी है, ब्यूटीफुल सीनरी है, माउंटेन्स हैं उनके पीछे, या ग्रीनरी है, ग्रीन फील्ड्स हैं, दैट हैज़ बिन मार्ड, दैट हैज़ बिन डिस्ट्रॉयड, कि उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, उसको ख़राब कर दिया गया है विद द आर्टलेस पेंट यू हैव मेड। आपने यहाँ पर जो आर्टलेस पेंट बनाई है, अपने टीन सेट के ऊपर बनाई है, अपने घर के ऊपर जो पेंट लगा रखी है, वट एवर टाइप ऑफ पेंटिंग यू हैव डन, दैट इज़ आर्टलेस, दैट इज़ टोटली अगली, क्लम्सीनेस, कि वो बिल्कुल भद्दी दिखाई दे रही है। इट मीन्स यू हैव डिस्ट्रॉयड द ब्यूटीफुल लैंडस्केप फ्रॉम हियर बाई एक्सटेंडिंग दिस टीन शेड इन फ्रंट ऑफ योर हाउस। आपने टीन शेड लगाया, अपना इतना गंदा सा घर बनाया, तो आपने क्या है, जो नेचुरल ब्यूटी है उसको क्या कर दिया है, मार्ड कर दिया है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। सो इफ़ एवर दे स्टॉप देयर, दैट इज़ ओनली आउट ऑफ शॉर्ट्स और बिकमिंग इरिटेट, और दे आर शोइंग अनहैप्पीनेस, अपसेट होकर के, दुखी होकर के वो बताते हैं कि दैट वाई यू हैव डन दिस। ऑफ साइंस दैट विद अनटर्न रोंग एंड एस टर्न रोंग, या फिर वो ये कहते हैं कि जो साइन आपने लगाए हैं, एन, कोई एक बोर्ड लगाया गया है, एन मीन्स नॉर्थ एंड एस मीन्स साउथ, इट मीन्स दे हैव बीन टर्न रोंग। एन को आपने गलत नॉर्थ की बजाय साउथ की कर दिया है, ईस्ट की तरफ कर दिया है, या साउथ को वो गलत कर दिया है। सो दे ऑल्सो इरिटेट विद दीज थिंग्स, दैट वाई यू हैव टर्नड एन रोंग एंड एस रोंग, क्यों आपने एन बोर्ड को, नॉर्थ का जो बोर्ड है उसको रोंग कर दिया है, एस का जो बोर्ड है उसको रोंग कर दिया है। So they also complain for that. So there are two complaints they would always do, that why, अगर उनमें से कोई भी रुकता है तब वो कंप्लेन करते हैं, एक तो आपने लैंडस्केप खराब कर दिया, आपने एन को टर्न रोंग कर दिया है, एस को टर्न रोंग कर दिया है, वाई आर यू डूइंग दैट, इंस्टेड ऑफ परचेजिंग समथिंग फ्रॉम दैम, उनसे कोई चीज़ खरीदने की बजाय उनके साथ इस प्रकार का वो बिहेव करते हैं। दैट्स अनदर थिंग, दे हैव ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज, ये काम तो वो करते हैं, लेकिन जो चीज़ फार्मर ऑफर कर रहा है उनको सेल करने के लिए, सो व्हाट द फार्मर ऑफर्ड, फार्मर ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स, कि उसने क्या है, वुडन क्वार्ट्स के अंदर, वुडन के क्वार्ट्स है, क्वार्ट्स मीन्स यू कैन से स्मॉल पॉट्स, दे आर मेड ऑफ इन 1/4 क्वार्ट्स, जो पार्ट है एक पाव का, एक वुडन का एक बर्तन बनाया गया है, इन विच दे आर सेलिंग वाइल्ड बेरीज, जंगली बेर वो बेच रहे हैं। और क्रुक नेक्ड गोल्डन स्क्वेयर्स विद सिल्वर वार्ड्स, या फिर क्रुक नेक्ड, दैट इज यू कैन से बेंटेड नेक, बिल्कुल मुड़ी हुई गर्दन वाले क्या बनाए हुए उन्होंने, दे आर गोल्डन स्क्वेयर्स, गोल्डन कलर के स्क्वेयर्स हैं, स्क्वेयर्स आर पम्पकिन्स, जो पम्पकिन्स होते हैं, दे आर विद सिल्वर वार्ड्स, सिल्वर वार्ड्स मीन्स सिल्वर लाइन्स, सिल्वर की लाइन्स है उसकी, गोल्डन कलर के ये है, दैट इज़ in Hindi that is also called a kaddu. So they are also selling, one is wild berry, another is crook necked golden squares with silver wards, दो चीज़ें वो सेल कर रहे हैं। So the farmer who is offering, one is wild berries, another is crook necked golden squares, and also or beauty rests in beautiful mountain scene, because there is also beauty in the mountain scene, कि उनके पीछे ग्रीनरी है, ग्रीनरी के पीछे माउंटेन्स हैं, they are also offering the beauty। if the person who are just running there in the traffic, in the vehicles, they should stop there and they should also admire the beautiful mountain scene, कि वो beautiful mountain scene है उसको भी वो admire करें। So they are offering all these things, but even then these polished traffic, they passed with a mind ahead, बिना कोई माइंड किए हुए आगे बढ़ जाते हैं। इफ़ एवर अ साइड, अगर वो कभी रुकते भी हैं, देन आउट ऑफ शॉर्ट्स ओनली ड्यू टू सैडनेस, इरिटेशन एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड, ये कहते हुए कि आपने लैंडस्केप खराब कर दी है इस आर्टलेस पेंटिंग से, कि आपने ब्यूटीफुल सीन ही खराब कर दिया है, वाई आर यू हैविंग सच ए स्टॉप देयर। ऑफ साइन दैट एन टर्न रोंग एंड एस टर्न रोंग, या फिर आपने एन को रोंग टर्न कर दिया, एस को टर्न रोंग कर दिया, सो दे ऑलवेज कंप्लेन फॉर दैट। नाउ द फार्मर इज ऑल्सो अनहैप्पी ड्यू टू द बिहेवियर ऑफ दिस रिच पर्सन्स, फार्मर भी काफ़ी दुखी है, और वो क्या कहता है, यू हैव द मनी, भाई आपके पास पैसा है, बट इफ़ यू वांट टू बी मीन, पैसा तो है लेकिन आप मीन बनना चाहते हैं, आप मीजर बनना चाहते हैं, आप कंजूस बनना चाहते हैं। पैसा है और आदमी खर्च नहीं करता, इट मीन्स ही वांट्स टू बी मीजर और मीन, कि आप कंजूस बनना चाहते हैं, वाई कीप योर मनी, तो ठीक है अपना पैसा अपने पास रखिए, कीप योर मनी योर सेल्फ, दिस क्रॉसली, एंड यू शुड गो from here crossly without asking any question or without doing any complaint,
उसी के अंदर वो कहता है कि आप कंप्लेन क्यों कर रहे हैं कि माउंटेन सीन हमने ख़राब कर दिया है, या फिर एन टर्न रॉन्ग कर दिया है, एस टर्न रॉन्ग कर दिया है. विदाउट डूइंग एनीथिंग, you keep your money yourself and go from here this crossly, and this particular thing is done said by the farmer in anger. Cross here means showing angerness or irritation. एकदम से चिढ़ करके, अपसेट होकर के फार्मर कह रहा है this crossly. Here crossly mean two meaning, that you should go cross. रिच पर्सनस के लिए, जो कार व्हीकल वाले हैं, उनको तो कहता है कि आप यहाँ से इसको देख करके क्रॉसली ऐसे ही क्रॉस कर जाइए. बट द मीनिंग फॉर द फार्मर इज दैट व्हाई ही इज द पोइट हैज़ यूज्ड दिस क्रॉसली फॉर द फार्मर, बिकॉज ही इज इन एंगर दैट व्हाई द रिच पर्सनस आर नॉट परचेजिंग एंड इवन दे आर ओनली कंप्लेनिंग. वो कंप्लेन कर रहे हैं तो इसलिए वो इरिटेट हो गया है. क्रॉस होकर के वो कहता है कि व्हाई कीप योर मनी एंड गो अलॉन्ग, और आप आगे बढ़ जाइए. The heart to the scenery wouldn't be my complaint. The poet is saying the heart to the scenery wouldn't be my complaint, कि जो हार्ट, जो नुकसान हो रहा है सीनरी को, जो ब्यूटीफुल सीनरी है, माउंटेन सीन है, उसको जो भी हार्ट हो रहा है, उसका नुकसान हो रहा है, ये मेरी कंप्लेन नहीं है. इवन इफ दे आर नॉट केयरिंग अबाउट द ब्यूटीफुल सीन, अगर ब्यूटीफुल सीन के बारे में वो नहीं भी देख रहे हैं, दैट इज़ नॉट माई प्रॉब्लम. देन व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम इज ही सेइंग सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो व्हाट इज अनसेड, कि वो चीज़ मेरे को परेशान कर रही है. ट्रस्टिंग सोरो ऑफ व्हाट इज़ अनसेड, जो ट्रस्टिंग सोरो है, ट्रस्ट करने लायक एक दुख है, किस चीज़ का? फार्मर का. फार्मर का क्या ट्रस्ट था? फार्मर का ट्रस्ट ये था दैट द रिच पर्सन वुड कम टू हिम टू परचेज हिज आइटम्स सो दैट ही कुड गेट सम मनी. फार्मर का ये ट्रस्ट था कि रिच पर्सन उसके पास आएंगे, कार रोकेंगे, उससे सामान परचेज करेंगे. इंस्टेड ऑफ दैट दे आर ओनली कंप्लेनिंग. सो दैट वॉज अ ट्रस्टिंग सोरो ऑफ वट इज़ अनसेड, जो कहा नहीं गया है. एंड दैट ट्रस्टिंग सोरो हैव बीन ब्रोकन बाय द रिच पर्सनस. वो ट्रस्टिंग सोरो है, वो तोड़ दिया गया है रिच पर्सन के द्वारा. हियर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड, कि अब एक पॉइंट है, फार्मर के रूप में कह रहा है कि हम यहाँ सिटी से कहीं दूर रोड साइड स्टैंड बनाए हुए हैं, एक छोटी सी दुकान लगाए हुए हैं. एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी, एंड वी ऑलवेज आस्क फॉर डिमांड फॉर सिटी मनी टू फिल इन हैंड, ताकि हम हैंड के अंदर कुछ सिटी मनी को फिल कर सके. टू ट्राई इफ़ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपेंड, कि हम कोशिश तो करें. इफ़ इट इवन इफ़ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपेंड, यदि हमें ये एक्सपेंड नहीं करेगी, हमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटी नहीं दिखाएगी, एटलीस्ट वी कुड फील इट इन आवर हैंड, कम से कम इसको हम अपने हैंड के अंदर फील कर पाएँ. एंड गिव अस द लाइफ ऑफ मूविंग पिक्चर, promise that the party in power is said to be keeping from us. The poet is saying that at least we could feel, कम से कम महसूस तो करें उस पैसे को. and give us the life of the moving pictures promise, और कम से कम हम कोशिश करें to try to it will not make our being expend, and give us the life, कि अगर वो हमें एक्सपेंड नहीं कर पाएगी, उस प्रकार की लाइफ हो या उस प्रकार का की लाइफ नहीं दे पाएगी जो कि मूविंग पिक्चर्स के अंदर प्रॉमिस की जाती है. दैट द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, जो कि पार्टी पावर के अंदर है. इट मीन्स हियर अ सैटायर ऑफ ऑन द पॉलिटिशियंस. पॉलिटिशियंस हैं जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनके ऊपर व्यंग किया गया है. दैट हाउ दे ऑलवेज कीप ए प्रॉमिस टू अस व्हेन दे कम टू टेक आवर वोट्स ड्यूरिंग द इलेक्शन टाइम्स. इलेक्शन टाइम के अंदर किस प्रकार से जो पॉलिटिशियंस हैं वो हमसे वोट मांगने के लिए आते हैं, हमसे प्रॉमिस करते हैं दैट यू विल बी गिवन good houses, good facilities, and your life will be of also like the moving pictures in the theater. थिएटर के अंदर जिस प्रकार से जो पिक्चर्स हैं, किस प्रकार से लोग फैसिलिटीज़ प्राप्त करते हैं, आपकी लाइफ भी वैसी होगी. यू विल बी ऑल्सो प्रोवाइडेड हाउसेज नियर द स्टोर, थिएटर, मॉल, एंड यू विल हैव वन फ्लैट फॉर ईच फार्मर देयर. सो सच टाइप ऑफ थिंग्स आर ऑलवेज प्रोमिस्ड बाय द पॉलिटिशियंस. पॉलिटिशियंस हैं इस प्रकार की प्रॉमिस करते हैं, बट दे आर नेवर केप्ट. दैट्स अनदर थिंग, वो कभी भी निभाए नहीं जाते हैं. तो कहता है कि कम से कम जब हमारे पास पैसा आएगा तो कम से कम हम ट्राई तो करेंगे. इफ़ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपेंड, हमें पता है कि वो हमें एक्सपेंड तो नहीं करेगी, हमारी लाइफ को एक्सपेंड तो नहीं करेगी, उस प्रकार की चीज़ें नहीं होंगी. गिव अस द लाइफ ऑफ मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस दैट द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, कि जो पार्टी आज पावर के अंदर है, जिन्होंने हमसे ऐसा प्रॉमिस किया था कि वो हमें एक झूठे सपने दिखाए थे मूविंग पिक्चर्स वाले, उस प्रकार की लाइफ
जीने की हम कोशिश तो ज़रूर करेंगे, हमें पता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. सो दे ऑल्सो नो दैट इट विल नॉट हैपन, बट इवन देन वी विल ट्राई टू फील एटलीस्ट दैट अ कैश, कि हम वो कैश है, वो मनी है, वो फील करना चाहते हैं, एक बार हैंड के अंदर हमारे पास कुछ पैसा तो आए. बट इट इज़ ऑल्सो नॉट हैपनिंग बिकॉज द सिटी dwellers और द कार ओनर्स दे ऑलवेज क्रॉस विदाउट माइंडिंग अहेड ऑफ द फार्मर्स. फार्मर्स के बारे में वो सोचते भी नहीं है, दे ऑलवेज गो अहेड, आगे बढ़ जाते हैं. सो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट पैराग्राफ. दैट्स ऑल फॉर टुडे.